اگر اس نے مجھے ٹھہرنے کو کہا تو ہمارا ساتھ وہیں ختم ہو جائے گا، لیکن اگر وہ شخص نہ ملا یا اس نے مجھے جلدی رخصت ہونے کی اجازت دے دی تو میں آپ سب کے ساتھ زیارت چلوں گا۔ ہم لوگ رات گئے تک جاگتے رہے۔ مارک بالکل فٹ نظر آ رہا تھا۔ میں نے پاکستان کی ثقافت، تاریخ، یہاں کے لوگوں کے رہن سہن، رسم و رواج اور نمایاں خصوصیات کے متعلق بتاتا رہا۔ یوں تو سبھی میری باتیں دلچسپی سے سن رہے تھے، لیکن سوزی کا انہیں حماق ذرا مختلف رنگ لیے ہوا تھا۔ ابتدا میں مجھے یہ اپنا وہم لگا تھا، لیکن اس کی والہانہ نظریں مسلسل میرا تعاقب کر کے اس کے دل کا حال مجھ پر عیا کرتی گئی۔ امریکہ جیسے بے حجاب ملک سے تعلق رکھنے والی اس لڑکی کے لیے یہ کوئی غیر معمولی بات نہ تھی، لیکن اس کی یہ بے باکی مجھے سخت بے آرامی کی کیفیت میں مبتلا کیے دے رہی تھی۔ خدا خدا کر کے ان لوگوں کو خیال آیا کہ رات خدا نے سونے کے لیے بنائی ہے۔ میرے سونے کا انتظام ان لوگوں نے مارک کے کمرے ہی میں کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد باقی لوگ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ مارک خواب اور دوا کے زیر اثر جلدی سو گیا۔ میں نے بھی خود کو نیند کے حوالے کر دیا۔ مجھے سوئے ہوئے جانے کتنی دیر ہوئی تھی کہ کسی عجیب سے احساس نے مجھے جگا دیا۔ کمرے کی لائٹ بند تھی اور کسی کے نامعلوم سانسیں میرے چہرے کو جھلسائے دے رہی تھی۔ پھر مجھے اپنے رخساروں پر دو نرم و نازک ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ مجھے صورتحال سمجھنے میں محض چند لمحے لگے ہوں گے، لیکن تب تک شبنم میں بھیگی گلاب کی کلیاں میری پیشانی پر مہکتی مہر ثبت کر چکی تھی۔ مجھے لگا کہ جیسے میرا وجود بے وزن ہو کر فضا میں بلند ہو رہا ہے۔ قبل اس کے کہ سوزی مزید پیش قدمی کر پاتی، میں نے بستر پر کروٹ لے کر خود کو اس سے دور کیا اور پھر بستر سے اتر کر کھڑا ہو گیا۔ سوزی پلیز ایسا نہیں کرو، میں نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ اسی وقت میرا پاؤں کسی تھاتی برتن سے ٹکرایا۔ جھنجھناہٹ اس قدر زوردار تھی کہ میں نے غنودگی میں ڈوبے مارک کی ہموار سانسوں میں بھی بے ترتیبی محسوس کی۔ اگر وہ بیدار ہو جاتا تو میری پوزیشن کافی نازک ہو سکتی تھی۔ اس دوران میں میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو چکی تھیں۔ میں نے ایک ہیولے کو کمرے سے باہر جاتے دیکھا۔ اگلے لمحے میں دوبارہ اپنے بستر پر دراز ہو چکا تھا۔ مارک کی نیند دوبارہ گہری ہو گئی، لیکن میری نیند ہوا ہو چکی تھی۔ یہ واقعہ مجھے نئے اندیشوں میں مبتلا کر گیا تھا۔ کہیں یہ لڑکی میری پہلو تہی کو اپنی توہین نہ سمجھ بیٹھے۔ میں موجودہ صورتحال میں کسی کی دشمنی مول لینے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ دوسری طرف اگر سوزی کی ایسی کوئی بے باکانہ حرکت اس کے بھائیوں کی نظر میں آ جاتی تو ان کا مہربانی آمیز رویہ تبدیل بھی ہو سکتا تھا۔ بالآخر صبح بھی ہو گئی۔ میں سوزی کا سامنا کرنے کے خیال سے گھبرا رہا تھا۔ سب سے پہلے ایلس بیدار ہوئی۔ اس نے مارک کی طبیعت کا پوچھا اور پھر چوکیدار کو ناشتہ لانے کی ہدایت دینے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جان اور میری بھی بیدار ہو گئے۔ صرف وہ نہیں آئی جس نے میری نیند تہس نہس کر ڈالی تھی۔ میری جاؤ، سوزی کو جگا دو، ناشتہ آنے والا ہے، جان نے کہا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری نے کہا، وہ دیر سے اٹھے گی۔ اس نے کہا ہے کہ ہم لوگ ناشتے پر اس کا انتظار نہ کریں۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی مانی خیز چمک تھی۔ میرا دل بری طرح دھڑک اٹھا، کہیں یہ رات کی واردات سے آگاہ تو نہیں ہے، سوزی نے اسے ہمراز تو نہیں بنا رکھا ہے۔ اس طرح تو یہ معاملہ بہت جلد ان سب لوگوں کے علم میں آ جائے گا۔ چوکیدار پورے 2 گھنٹے بعد ناشتہ لے کر واپس لوٹا۔ جان اور مارک نے ناراضگی کا اظہار کیا تو چوکیدار نے ایک سنسنی خیز خبر سنا کر مجھے بری طرح چونکا دیا۔ اس نے بتایا کہ رات گئے پولیس کو 2 افراد کی مسخ شدہ لاشیں ملی ہیں جنہیں وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کیا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق دونوں مقتول ٹیرا غازی خان سے لورالائی دودھ لے جانے والے ایک ٹرک کے ڈرائیور اور کلینر تھے۔ ٹرک خراب ہو جانے کے باعث انہیں کھر قصبے کے پاس رکنا پڑا تھا، جہاں سے نامعلوم افراد نے انہیں اغوا کر لیا اور پھر سخت اذیتیں دینے کے بعد انہیں قتل کر کے ان کی نعشیں سڑک کے عین درمیان میں پھینک دیں۔ اب پولیس والے ان دونوں کے قاتلوں کو تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے بڑے بازار کے مسافر خانوں میں ٹھہرے تمام مسافروں سے کڑی تفتیش کی تھی اور ان کے سامان کی بھی تلاشی لی تھی۔ اس کے علاوہ جو کوئی ان کے ہتھے چڑھتا تھا وہ اسے پکڑ کر بٹھا لیتے تھے اور اس سے ان 2 افراد کے قتل کا اعتراف کرانے کی کوشش کرتے تھے۔ چوکیدار بیچارہ بھی ان کے چنگل میں پھنس گیا تھا اور بمشکل جان چھڑا کر واپس آ سکا تھا۔ میرے لیے صورتحال کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔ غلام مصطفیٰ اور اس کا کلینر میری تلاش میں بھٹکنے والے خونی درندوں کی نظروں میں آ گئے تھے۔ میرا پتہ جاننے کے لیے ان بیچاروں پر اتنا بہیمانہ تشدد کیا گیا کہ وہ جان کی بازی ہار گئے۔ ہو سکتا ہے وہ بتانے پر مجبور ہو گئے ہوں کہ میں ان سے رخصت ہو کر فورٹ منرو کی طرف روانہ ہوا تھا۔ گویا میں سنگین خطرات میں گھرا ہوا تھا۔ اسے محض اتفاق ہی کہنا چاہیے کہ میں شام کو گھر واپس جانے کے باوجود ان شکاریوں کی عقابی نظروں سے محفوظ رہا تھا۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ پولیس ان 2 مظلوموں کے قاتلوں کو نہیں بلکہ ان کے تیسرے ساتھی کو تلاش کر رہی تھی۔ اگر میں کسی مسافر خانے میں رات گزارتا تو کب کا ان کے ہتھے چڑھ چکا ہوتا۔ میری احتیاط پسندی نے مجھے بچا لیا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ میرے خون کی بو پر بھٹکنے والے درندے اس ٹرک، اس کے ڈرائیور اور کلینر تک کیسے پہنچے۔ یہ محض اتفاق نہیں تھا،
इन्हें इस ट्रक में मेरी मौजूदगी का 100% यकीन रहा होगा और इस यकीन का एक ही जवाब हो सकता था। इन्हें काबिल एतमाद जरिए से इत्तला मिली होगी कि मैं इस ट्रक में छुप कर लोरा लाई फरार हो रहा हूं। इससे यह नतीजा अखज़ करना बेजा नहीं था कि यह मुखबरी खिज़र खान के किसी गद्दार कारिंदे के लालच या खौफ का शाखसाना थी। यह मेरी खुशकिस्मती थी कि ट्रक खराब हो गया और मैंने बर वक्त इससे दूर होने में कामयाबी हासिल कर ली। अब मेरे लिए लोरा लाई में कदम रखना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। मेरी जान के दुश्मन लोरा लाई में मेरे मुंतजिर होंगे। अब खैरियत इसी में थी कि अब लोरा लाई से आकर उस्ताद मीनू से मुलाकात का ख्याल ज़हन से निकाल दिया जाता। इस सूरत-ए-हाल के पेश नज़र अब मैं रेस्ट हाउस से बाहर निकलने और आज़ादाना घूमने फिरने का खतरा मोल भी नहीं ले सकता था। इसके अलावा अब मैं सिर्फ इन गोरों के साथी की हैसियत से ही इस खूबसूरत पिंजरे से निकलने की कोशिश कर सकता था। जॉन और उसका साथी देर तक दोहरे कत्ल की इस वारदात पर तबादला ख्याल करते रहे। मैंने इन्हें बताया कि कबायली दुश्मनियों की नस्ल दर नस्ल रवायात के मुताबिक इस तरह की वारदातें इन इलाकों में वक्तन फवक्तन रूनमा होती रहती हैं। ताहम इससे हम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कत्ल गारत करे और गैर मुतलका लोगों को अपनी लपेट में नहीं लेती। ताहम इस मौजू को तूल देने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि बात इतनी आगे बढ़े कि मेरी असलियत आश्कार होने का खतरा पैदा हो जाए। खुदा जाने इस वाक़े का असर था या मार के मजरूब हो जाने का ख्याल, लेकिन वो लोग शाम तक रेस्ट हाउस से बाहर नहीं गए। सोजी शदीद इसरार पर दोपहर के खाने पर आ गई थी, लेकिन उसकी हालत से साफ जाहिर हो रहा था कि वो अपने आप में नहीं है। चंद लुकमे लेने के बाद वो अपने कमरे में वापस चली गई। मौसम सुबह से बहुत अच्छा हो रहा था। हल्के हल्के बादल छाए हुए थे, उनका हवा चल रही थी। शाम होने पर जॉन, एलिस और मैरी ने घूमने फिरने के लिए बाहर जाने का इरादा जाहिर किया। मार्को को मजीद आराम देने के लिए अपने साथ लेकर नहीं जा रहे थे। मैंने सरदर्द का बहाना करके इनके साथ जाने से मुआज़त कर ली, जबकि सोजी तो गुज़िश्ता रात ही से अपने कमरे में बंद मेरी बदमिजाजी का शौक बना रही थी। मैरी की नज़रों में मेरे लिए अब भी मानी की चमक मौजूद थी, चुनाचे मैं उससे नजरें चुराने की अतुल इम्कान कोशिश कर रहा था। इन तीनों के जाने के बाद मैं और मार्क गपशप करते रहे। हमें खासी बेतकल्लुफी हो गई थी। तो पाकिस्तान के बारे में अपने तासुरात बयान करता रहा। उसने बताया कि उसने मुल्तान से एक शलवार सूट खरीदा था जो उसे पहनने में बहुत आरामदेह लगा, लेकिन इसका ख्याल में ये लिबास तेज रफ्तारी से काम करने के लिए मौजू नहीं था। मैंने उसकी तरदीद करने की कोशिश नहीं की। फिर उसने शदीद इसरार करके अपनी जीन्स और टी शर्ट मुझे पहना दी। यही नहीं, उसने अपनी पी कैप और सन ग्लासेस भी मुझे पहना दिए। अब तुम एक हैंडसम अमेरिकन नौजवान दिखाई देते हो, उसने सताइशी लहजे में कहा। जब तुम हमारे साथ हो तो तुम यही लिबास पहनोगे, ठीक है? उसकी जुबान से निकलने वाला हर लफ्ज मेरी मर्जी के ऐन मुताबिक था। मैं खुद भी तो इन्हीं में से एक नजर आना चाहता था। सूरज ढले जॉन वगैरह भी लौट आए। उन्होंने भी मुझे इस हुलिये में बेहद सराहा। रात के खाने पर सोजी भी मौजूद थी। अब उसकी हालत काफी बेहतर नजर आ रही थी। उसने अपनी जज्बाती कैफियत पर काबू पा लिया था। सुबह में ज़ियारत रवाना होना था, लिहाजा जल्दी सोने का प्रोग्राम बना लिया गया। मार खुद को बिल्कुल फिट महसूस कर रहा था, चुनाचे वो मुझे कमरे में तनहा छोड़ गया। मेरा ख्याल था कि गुज़िश्ता रात की हौसला शिकनी के बाद सूजी मेरे कमरे का रुख नहीं करेगी, लेकिन दिल के किसी चोर गोशे में उसका इंतजार भी था। मेरी नजरें बार बार कमरे के दरवाजे की तरफ उठ रही थी। 11 बजे के करीब दरवाजे पर आहट हुई। मेरे दिल की रफ्तार यकलख्त बढ़ गई। वो सूजी ही थी। जब ख्वाबी के लिबास में वो बहुत दिलकश और निखरी निखरी दिखाई दे रही थी। वो महज लम्हा भर दरवाजे में ठहरी और फिर अंदर दाखिल होगी। मुझे यकीन था आप जाग रहे होंगे और आपको चाय की जरूरत भी महसूस हो रही होगी, उसने शगुफ्ता लहजे में कहा। तब मेरी नजरें उसके हाथों में मौजूद छोटी सी ट्रे पर पड़ी, जिसमें चाय से लबरेज 2 कप मौजूद थे। इस अपनायत अमेज बेतकल्लुफी ने मेरा इस्तराब दूर कर दिया। आइए, मैं वाकई शिद्दत से चाय की तलब महसूस कर रहा था। यूँ लगता है जैसे आप लोगों के ख्यालात पढ़ना जानती हैं। सब लोगों के नहीं, मैं सिर्फ चंद खास लोगों के ख्यालात पढ़ने की अहलियत रखती हूँ। वैसे अगर इन खास लोगों में आपका नाम शामिल कर लूँ तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? मेरी समझ में नहीं आया कि लगाव के इस वाज़े इजहार का मैं क्या जवाब दूँ। मेरी मुश्किल उसने खुद आसान कर दी। परेशान मत हो, मैं ज़बरदस्ती आपके गले से लटकने का इरादा नहीं रखती। वैसे भी ज़रूरी नहीं कि जो शय आपके दिल को अच्छी लगे वो आपकी दस्तरस में भी हो। आप मेरी तवक्का से ज़्यादा समझदार हैं सूजी। ज़िंदगी एक सफ़र का नाम है जिसमें नित नए हम सफ़र मिलते हैं। इनमें से हर एक को मंजिल नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हो सकता है खुद इस मुसाफिर की मंजिल कोई और हो। ओह, मुझे पहले ही अंदाज़ा था। अब मशरकी लोग बहुत रोमांटिक होते हैं, तो जनाब पहले ही किसी को अपने दिल का मालिक बना चुके हैं। हाँ सूजी, मुझे कल रात के वाक़े का अफसोस है। मुझे उम्मीद है आपने मेरे रवैये को अपनी तौहीन नहीं समझा होगा। मैंने बड़ी एहतियात से अल्फाज का इंतखाब करते हुए कहा। मेरी बात सुनकर सूजी के चेहरे में शदीद हैरानगी के आसार नमूदार हुए। आप किस वाक़े की बात कर रहे हैं? कल रात तो मैंने बिस्तर से कदम ज़मीन पर नहीं रखा। मुझे सीने में ठंड सी लग रही थी।
और दमे का पुराना मर्ज मुझ पर हमला आवर हो गया था। इसकी बात सुनकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। और तो फिर वो कौन थी जिसने? मैं कोशिश के बावजूद अपनी बात पूरी नहीं कर सका। सूजी चंद लम्हों तक हैरत से मेरा मुंह तकती रही, फिर उसके हसीन चेहरे पर यकायक जोशो खरोश के तासरात उभर आए। मैं समझ गई, तो वो कुतिया आपके पास आई थी। आप किसकी बात कर रही हैं? मैंने परेशान होकर पूछा। वही मैरी। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इस हद तक गिर जाएगी। कल रात मेरी आंख खुली तो मुझे उसका बिस्तर खाली नजर आया था। मैं सोचकर दोबारा सोगी कि वो मार्क की तबीयत का जायजा लेने गई है, लेकिन वो मार्क के रोशन मुस्तकबिल के इम्कानात की वजह से इसके पीछे पड़ी हुई है, वरना वो मोहब्बत और वफा के नाम से भी नावाकिफ है। मैं मार्क को उसकी इस हरकत के बारे में जरूर बताऊंगी। प्लीज सूजी, जब तक मैं आप लोगों के साथ हूं तब तक इस बारे में जुबान खोलने की कोशिश नहीं करना। मैं फिलहाल कोई बदमज़गी नहीं चाहता। ठीक है, लेकिन मैं अपने भाई को इस हराफा से किसी कीमत पर शादी नहीं करने दूंगी। वो सख्त गुस्से में नजर आ रही थी। मैंने उसे बामुश्किल पुरस्कून करके रुखसत किया। अगले रोज सुबह सवेरे हम अपने सफर पर निकल खड़े हुए। मैंने उसे बताया कि मैंने लोरा लाई में रुकने का इरादा तर्क कर दिया है और अब मैं इनके साथ ज़ियारत जाऊंगा। ये सुनकर वो सब बहुत खुश हुए। मेरा हुलिया बिल्कुल जॉन और मार्क जैसा था। मुझे इत्मीनान था कि गैर मामूली तवज्जो दिए बगैर मुझे इस टोली से अलग नहीं समझा जा सकता था। जॉन नहायत महारत से गाड़ी चला रहा था। वो बिलाशुबा बहुत अच्छा ड्राइवर था। इसे बखूबी अंदाजा था कि इन दुश्वार गुजार और खतरनाक रास्तों पर जल्दबाजी या लापरवाही का नतीजा सिर्फ और सिर्फ मौत की सूरत में निकल सकता था। हम इजाफी खुराक साथ लेकर रवाना हुए थे, क्योंकि हम शाम से पहले ज़ियारत पहुंचना चाहते थे। जॉन के पास नक्शा मौजूद था। इसके अलावा मैं भी उसकी रहनुमाई करता रहा। गाड़ी की फ्रंट सीट पर एलिस जॉन के हमरा विराजमान थी। मार्क मुझसे गपशप लगाने के लिए इतना बेताब था कि उसने दोनों लड़कियों को अकमी नशिस्तों पर भेजकर दरमियानी नशिस्तों पर मेरे हमरा कब्जा कर लिया था। लोरा राय करीब आने पर मैंने सर में दर्द की शिकायत की। मार्क ने मुझे च्युइंगम पेश की, लेकिन मैंने अपना सर अगली नशिस्तों की पुष्ट से लगाकर आंखें बंद कर ली। क्या बहुत ज्यादा तकलीफ है खान? मार्क ने तशवीश भरे लहजा में पूछा। नहीं, पहाड़ी रास्तों पर सफर के दौरान मुझे कभी कभी यह तकलीफ हो जाती है। अभी कुछ देर में ठीक हो जाऊंगा। ऐसा करो, तुम सीट पर लेट जाओ। एलिस, तुम्हारे फर्स्ट एड बॉक्स में सरदर्द की कोई गोली तो होगी? एलिस की दी हुई गोली निकल कर मैं मार्क की रान पर सर रख कर लेट गया। पी कैप मैंने पेशानी पर झुका ली थी। मैं पूरे 2 घंटे इसी हालत में लेटा रहा। इसी दौरान में गाड़ी सुबक रफ्तारी से आगे बढ़ती रही। बिलाखिर मैं उठ बैठा। अब कैसी तबीयत है? मार्क ने पूछा। बहुत मामूली सी तकलीफ बाकी है। मैंने कनपटियां से हिलाकर कहा। ये पी लो, तुम बिल्कुल फिट हो जाओगे। मार्क ने सूजी के हाथ से थर्मास के कप नुमा ढक्कन में चाय लेकर मेरे हवाले कर दी। चाय पीकर मैंने जाहिर किया कि जैसे मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं। दर्द ना सही, बखतरे की जद में तो था ना। अब मुझे इस अजाब से भी छुटकारा मिल चुका था। हम शाम ढलने से खासा पहले ज़ियारत पहुंच चुके थे। इन लोगों के अलावा मैं खुद भी वहां पहली बार आया था। इस खूबसूरत वादी का पुररोब हुस्न देखकर हम मबहूत होकर रह गए थे। बुलंदो बाला सनोबरों से छिन कर आने वाली खून का हवा बदन में मीठी सी थथराहट पैदा कर रही थी। जिस रेस्ट हाउस में हमें ठहरना था वो एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर तामीर किया गया था। जदीद दौर की बेशतर सहूलतों से आरास्ता ये रेस्ट हाउस एक सरकारी महकमे की मलकियत था। रेस्ट हाउस का चौकीदार और उसके लिए भी नज़दीक ही एक झोपड़ी नुमा मकान मौजूद था। चौकीदार ने बताया कि वो मेहमानों के गुज़िश्ता रोज़ न आने की वजह से परेशान हो गया था, क्योंकि इन खतरनाक पहाड़ी रास्तों पर हादसात रोज़मर्रा का मामूल हैं। सफ़र की थकन ने मेरे हम सफ़रों खसूसन खवातीन को निढाल कर दिया था। चुनाचे खाने के फौरन बाद सब ने बिस्तर संभाल लिए। सिर्फ मैं था जिसकी आंखें नींद से महरूम थी। मुझ जैसे बेमंजिल मुसाफिर का ऐसी थकन भला क्या बिगाड़ सकती थी? सर्द चांदनी रात में मेरा जहन अपने रोज़ो शब का तजिया करता रहा। मुझे हैरत इस बात से हुई थी कि नफरत का वो तूफान जो बचपन से अपने माँ के खिलाफ में रगे पै में गर्दिश करता था, अब न जाने धीमा क्यों पड़ गया था। क्या ये इस माहौल से दूर निकल आने का नतीजा था जो मुझे उस सहने के हवाले से मेरी रूह को कचोके देता था? मेरा वो खंजर भी मुझसे छिन गया था जिसे मैंने अपनी नफरत के जहर में बुझाकर अपने बाप के कातलों के खून से गुसल देने की कसम खाई थी। कमालुद्दीन खान की जुबानी मुझे इल्म हुआ था कि बरकत अली की बीवी मेरी माँ के हम नाम होने के अलावा कुछ इस किस्म का पस मंजर भी रखती है। कमालुद्दीन खुद भी उसके खून का प्यासा था, लेकिन न जाने क्यों मेरे वजूद में उस औरत के खिलाफ इंतकामी चिगारियां भड़क नहीं पाई थी। अगर वो वाकई वही थी जिसके खात्मे को मैंने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया था, तो फिर मैं इसे क्यों कर फरामोश कर बैठा हूँ? यकायक मुझे एक अजीब सा ख्याल आया। जो मैं इस पर गौर करता गया, मुझे यकीन होता चला गया कि असल सूरत हाल यही है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे वजूद में इंतकाम की आग उस दिन तक पूरी हलाकत आफरीनी से दहक रही थी जब सखी सरवर सुल्तान की दरगाह के अहाते में इस पुरस्रार शख्सियत कलंदर बाबा से मेरी मुलाकात हुई थी। उसने मुझे तलकीन की थी कि मैं नफरत की आग में खुद को जलाना छोड़ दूं।
इसके बाद से मेरे सीने में इंतकाम की आग ठंडी पड़ती चली गई थी। ये अलग बात है कि मुझे खुद उसका एहसास नहीं था। सुबह नाश्ते के फौरन बाद हम सब वादी ज़ियारत की सैर को निकल खड़े हुए। मुझे न चाहते हुए भी इन सब का साथ देना पड़ रहा था। मैंने खुद को तारीख का तालिब इल्म कहकर अपनी गर्दन फंसवा ली थी। वो लोग हर मकाम का तारीखी पस मंजर दरियाफ्त करते थे। मैं जैसे तैसे इन्हें मुतमईन करता रहा। अब मुझे इस ड्रामे से उलझन होने लगी थी। मैं जल्द अज जल्द कोयटा निकल कर भागना चाहता था ताकि अपना मिशन आगे बढ़ा सकूं। वो लोग 3-4 रोज ज़ियारत में गुजारने का इरादा रखते थे। मैं तब तक वहां फंसा नहीं रह सकता था। मैंने फैसला किया कि मैं अगले रोज इनसे इजाज़त लेकर कोयटा रवाना हो जाऊंगा। लेकिन उस रात सूजी की तबीयत एक बार फिर खराब हो गई। उसे दमे का दौरा पड़ा था। अगले दिन तक उसकी हालत मजीद बिगड़ गई। ज़ियारत की खुनक फिजा उसे रास नहीं आई थी। इसकी हालत देखते हुए जॉन ने ज़ियारत में मजीद ठहरने का प्रोग्राम मनसूख कर दिया। शाम को अब सब अपना सामान समेट कर कोयटा आ गए। वो लोग शाहराह ज़रगून पर वाक़ई शहर के सबसे बड़े होटल में ठहरे थे। मैंने इनके साथ ठहरने की दावत पर मुआज़त कर ली और मिलते रहने का वादा करके होटल की खूबसूरत इमारत से बाहर निकल आया। सरदार खिजर खान के दोस्त नेमत खान का पता और उसके नाम खिजर खान का खत मेरे पास महफूज था। लेकिन मैं खामखा उसे जहमत नहीं देना चाहता था। मैंने एक रिक्शा रोका और ड्राइवर को किसी सस्ते होटल वाले इलाके तक चलने की हदायत की। रिक्शा ड्राइवर चंद लम्हों तक अजीब सी नजरों से मुझे देखता रहा। फिर उसने सड़ सटक कर रिक्शा आगे बढ़ा दिया। उसने मुझे जिस जगह छोड़ा वो एक पारोनक बाजार था। रात का पहला पैर करीब करीब गुजर चुका था, लेकिन वहां अभी तक खासी चहल पहल थी। मैं कदीम इमारत में वाक़ई होटल में दाखिल हुआ। मुझे देखकर इस्तकबालिया के तौर पर इस्तेमाल होने वाले मेज़ के अक्कम में मौजूद शख्स जैसे सोते से जाग उठा। मैंने उसे कहा कि मुझे एक कमरा चाहिए। मेरी बात सुनकर वह हैरत अंगेज तौर पर किसी नामालूम सोच में गुम हो गया। उसकी नज़रें मुसलसल मेरा जायजा ले रही थी। फिर उसने मुझे ठहरने की हदायत की और अंदर एक दरवाजे में गायब हो गया। उसका तर्ज अमल मुझे इज़्तिराब में मुब्तला कर रहा था। वो कई मिनट बाद वापस लौटा। माफ़ करना जी, हमारे पास इस वक्त कोई कमरा खाली नहीं है, उसने अजीब रूखे लहजे में कहा और फिर एक रजिस्टर में ना जाने कौन से इंदराजात का बगौर जायजा लेने में मसरूफ हो गया। मैं शदीद झुंझलाहट के आलम में होटल से बाहर निकल आया। इस शख्स ने सरासर गलत बयानी से काम लिया था। सामने मौजूद लकड़ी के खानों में रखी मुतअद्दिद चाबियों से साफ जाहिर था कि इस होटल में एक नहीं बल्कि कई कमरे खाली थे। लेकिन उसने मुझे साफ इनकार कर दिया था। मुझे इस हरकत की वजह समझ नहीं आई। मैं इसी किस्म के एक और होटल में गया, लेकिन वहां भी मुझसे इसी किस्म का सलूक किया गया। तब मुझे अंदाजा हुआ कि कोई न कोई गड़बड़ जरूर है। मुझे अब भूख लग रही थी। मैं एक छोटे से रेस्टोरेंट में जा बैठा। इसके साथ ही सारी बात मेरी समझ में आ गई। रेस्टोरेंट में मौजूद तमाम लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। मेरा वो हुलिया जो डेरा गादी खान से कोयटा तक मेरी बेहतरीन आर्ट साबित हुआ था, अब मेरे लिए मुसीबत साबित हो रहा था। इस हुलिये में मैं सबसे अलग और अजनबी नजर आता था। दोनों होटल वालों ने मुझे मशकूक समझकर कमरा देने से इनकार कर दिया था। इन दिनों मुल्क भर में बम धमाकों की वारदातें इतने तसलसल से हो रही थीं कि लोग एक दूसरे को शक की नज़र से देखने लगे थे।